So we had done till question number 12 and I had skipped 7th and 8th. So I'll do the 7th and 8th now. Let's start with 7th and 8th only. Let's start with that sum. It is a little different sum, but you know the formula for probability. In the last class, we had seen what is probability. Probability is number of favorable outcomes upon the total number of outcomes. Am I right? Number of favorable outcomes upon the total number of outcomes. Okay. So this question is a little different. We had done questions regarding questions belonging to dice, coin, balls, cards. We had done these type of questions. Okay, now this is a little different. This question has never come in exam till now. Okay, because these type of questions based on calendar, based on days, number of Tuesdays, Wednesdays, Sundays. These type of questions are not there in the other textbook, the concise textbook. So the probability of coming these questions coming in exam is less. Okay, but still because it is there and it's a good question, so we will solve it. Let's do it. See, find the probability that a month of February may have 5 Tuesdays. Find the probability that a month of February may have 5 Tuesdays. क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? कैसे करना है वो देखेंगे. ठीक है, पहले मतलब समझना जरूरी है कि फरवरी के मंथ में 5 ट्यूसडेज आने चाहिए. ठीक है. So the first thing is February, the month of February has 28 days for a non-leap year, and for a leap year it has 29 days. Correct? 28 days and 29 days. Okay. So अगर लीप ईयर है या अगर लीप ईयर नहीं है. Okay, so the answer will change for both. That is why they have given two sub questions, for leap year and for not leap year. Okay, so if it is a leap year, the first question is about leap year only. Yes, so if it is a leap year, the month of February will have 29 days. The month of February will have 29 days. Correct? Am I right? Okay. Now 29 days. See, one week is made up of 7 days. Correct? 1 week is made up of 7 days. Okay. So 7 days की एक week है. Okay. So first week, अगर मैं week की बात करूं, just understand the month properly. Okay. Try to understand the month properly. And I have told you always, all of you have to keep your videos on. All of you have to keep your videos on. I have to see you solving. I keep checking in between who's solving, what you are doing. Are you lying on your bed? Are you sitting on a chair? I can see that. So keep your videos on. Okay, see. The week. First week has 7 days. Second week will also have 7 days. Third week will also have 7 days. Fourth week will also have 7 days. हर एक वीक में 7 days होते हैं. ठीक है. So 4 weeks हो जाएंगे. तो कितने दिन कवर हो गए 4 weeks में? 4 weeks में 28 days कवर हो गए. ठीक है. वीक कौन से दिन से स्टार्ट होती है उससे मैटर नहीं करता. कौन से दिन से वीक स्टार्ट हो रही है, मंडे से हो रही है, ट्यूसडे से हो रही है, वेडनेसडे से हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता. बिकॉज अगर मंडे से स्टार्ट हुई तो वापस यहाँ से मंडे से स्टार्ट होगी, वापस मंडे से स्टार्ट होगी, वापस मंडे से स्टार्ट होगी. बट 7 days पूरे कवर हो जाएंगे. जैसे ये वीक में मंडे से लेके संडे तक सारे दिन आएंगे. ये वीक में भी मंडे से लेके संडे तक सारे दिन आएंगे. इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे. ठीक है. तो 4 हफ्ते हो गए, मींस 28 days आर कवर्ड. ओके. इन 28 days में ट्यूसडेज कितनी बार आएगा? इन दिस 28 days ट्यूसडेज विल कम 4 times. करेक्ट? सिंपल. यहाँ पे भी ट्यूसडे आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा. ठीक है. 4 बार ट्यूसडे आएगा. Okay, now we are talking about the leap year. Okay, now the leap year has 28 plus 1 days. Correct? Leap year 28 days तो होती है, plus एक दिन एक्स्ट्रा होता है. Okay, plus एक दिन एक्स्ट्रा होता है. So 28 days के अंदर 4 बार तो ट्यूसडेज आ चुका है.
ओके और हर एक मंथ में एवरी मंथ हैज एटलीस्ट हैज 4 वीक्स, 4 फुल वीक्स। हर एक मंथ में 4 फुल वीक्स होती है, ठीक है, और उसके अलावा 2-3 दिन होते हैं। 30 डेज का मंथ होगा या 31 डेज का मंथ होगा। ओके तो 2-3 दिन, 4 फुल वीक्स के अलावा 2-3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो 4 वीक्स तो होते ही है हर महीने में, मतलब 4 बार तो ट्यूसडे आएगा ही, दैट इज कंपलसरी, वो तो कम नहीं होने वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 5 ट्यूसडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 5 ट्यूसडेज आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब कि ये जो एक एक्स्ट्रा दिन है, इस दिन पे भी अगर ट्यूसडे आ गया तो 5 ट्यूसडेज हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके अगर ये जो 5th डे है, यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा दिन है एक, अगर इस दिन पे भी ट्यूसडे आ गया तो 5 ट्यूसडे हो जाएंगे टोटल। ओके सो इसका मतलब हमें फाइंड करनी है कि इस एक दिन में ट्यूसडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो ये जो एक दिन है एक्स्ट्रा, ओके इस एक दिन पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 7 में से कोई भी एक दिन आ सकता है। इन 7 दिन में से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पूरे वीक में से कोई भी एक दिन आ सकता है। तो उन 7 डेज, टोटल 7 डेज है हमारे पास, ठीक है, टोटल 7 डेज है वीक के। उन 7 डेज में से एक ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/7। ओके सो एक ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 7 दिन है, सी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन, ये टोटल आउटकम्स है कि इन 7 में से कोई भी एक दिन आ सकता है। और हमें कौन सा दिन चाहिए आना चाहिए, हमें चाहिए कि ट्यूसडे आना चाहिए, ठीक है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/7। ओके थोड़ा एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट वेट, डोंट कॉपी इट डायरेक्टली, मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है। "28 days means 4 full weeks." Okay, so it will have 4 Tuesdays. It will have 4 Tuesdays. Okay. Leap year has 1 extra day. So probability of a Tuesday is 1/7. Probability of 5 Tuesdays will be 1/7. Done. Next. नेक्स्ट क्या है, नॉन लीप ईयर। अगर नॉन लीप ईयर है तो फरवरी में कितने डेज होंगे, 28 डेज होंगे, ठीक है। नॉन लीप ईयर है, फरवरी में 28 डेज होंगे। 28 डेज मींस 4 फुल वीक्स। 28 डेज मींस 4 फुल वीक्स। ओके तो 4 ट्यूसडेज आएंगे। तो 5th ट्यूसडे आने के लिए दिन है ही नहीं, एक्स्ट्रा दिन ही नहीं है 5th ट्यूसडे आने के लिए। जैसे यहाँ पे 5th ट्यूसडे आने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा था कि उस पे 5th एक और ट्यूसडे आ सकता था, ठीक है। बट यहाँ पे तो 28 डेज ही है, मतलब 4 ही हफ्ते हो सकते हैं, उसके ऊपर एक भी दिन नहीं हो सकता है। तो इन दिस केस it is impossible to have 5 Tuesdays. Okay. So right here 28 days will have 4 full weeks, but no
extra day. Therefore, probability of 5 Tuesdays is 0/7. That is 0. Is it visible, or I should move the camera a little bit? Next, be a little quick, students. Eighth sum. Eighth sum be interesting. What they are asking me is, find the probability that there are 53 Mondays. ओके अब देखो इस मंडेज की जगह पे ट्यूसडेज की जगह पे वो लोग कौन सा भी दिन डाल देंगे, ठीक है, सबके लिए आंसर सेम ही होता है. सब दिन कोई भी डाले, मंडेज डाले, ट्यूसडेज डाले, संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, कोई भी दिन दे, आंसर सबके लिए सेम होता है, प्रोसेस सबके लिए सेम होता है, ठीक है. ओके, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 मंडेज इन अ लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर. वापस ठीक है, पूरे ईयर की बात कर रहे हैं, अभी मंथ की बात नहीं कर रहे. तो 53 मंडेज बोला है, ठीक है, लीप ईयर में एंड नॉन लीप ईयर में, ठीक है. सबसे पहले तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? हाउ मेनी डेज आर देयर इन द लीप ईयर? 366 days are there in a leap year, correct? 366 days. 366 days are there in a leap year. Okay. Now you should remember this basic thing that पूरे साल में there are 52 complete weeks in a year. पूरे साल में 52 complete weeks होती है, ठीक है, 52 complete weeks. मुझे कैसे बताइए? 52 into 7 करता हूँ, बिकॉज एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 52 into 7, 7 2 14, 1 7 5 35, 36, तो ये कितना मिला? 364 days. ओके, सो इन अ ईयर देयर आर 52 कंप्लीट वीक्स, बिकॉज 364 days तो होते ही है, 365 होते हैं इनफैक्ट नॉर्मल ईयर में, ठीक है, और लीप ईयर में 366 होते हैं. तो 364 डेज में 52 वीक्स तो कंप्लीट हो गई. बात सही है, ठीक है. सो there are 52 complete weeks, ठीक है. तो 52 वीक्स कंप्लीट है, मतलब 364 डेज हो गए. 52 वीक्स में 364 डेज खत्म हो गए, ठीक है. अब उस 52 वीक्स में 52 टाइम्स मंडे आया होगा, हर एक वीक में एक बार मंडे आया होगा, ठीक है. तो 52 टाइम्स मंडे आ गया. ओके, हमें पूछा है 53 टाइम्स, मतलब एक और टाइम एक्स्ट्रा आना चाहिए, बरोबर. तो देखो ये 366 डेज है मेरे पास, इसमें से 364 डेज तो हो गए, 52 वीक्स में चले गए, ठीक है. अब मेरे पास 2 एक्स्ट्रा दिन बचे हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज ऑन विच देयर कैन बी अ मंडे. तो 2 एक्स्ट्रा दिन है मेरे पास, 1 और 2. बात समझ में आ रही है? मेरे पास 2 एक्स्ट्रा दिन है यहाँ पे, तो इधर भी मंडे आ सकता है, इधर भी मंडे आ सकता है, बरोबर, ठीक है. और दूसरा भी कोई दिन आ सकता है, ऐसा नहीं कि मंडे ही, कोई भी दिन आ सकता है. टोटल ऑप्शंस कितने होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. 7 में से हमें मंडे चाहिए, ठीक है. तो इधर भी मंडे आ सकता है और इधर भी मंडे आ सकता है. ओके, 2 चांसेस है मंडे आने के, 2 दिन है हमारे पास स्पेयर. ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मंडे
will be 2/7. ओके, मतलब इस दिन पे मंडे आने की प्रोबेबिलिटी है 1/7, इस दिन पे मंडे आने की प्रोबेबिलिटी है 1/7. तो अगर इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं ऐड करके तो इट विल बी 2/7. ओके, जैसे पिछले समय हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन था तो ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/7. यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिन है तो इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी डबल हो जाएगी मंडे के आने की. जो हमारा स्पेसिफिक डे है उसके आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. ओके, तो यहाँ पे लिखना कैसे है, देयर आर 52 कंप्लीट वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज. ओके, 52 complete weeks and 2 extra days. So probability of 53 Mondays will be 2/7. ओके, ये बात हो गई लीप ईयर की. और नॉन लीप ईयर भी आप खुद भी कर सकते हो. नॉन लीप ईयर के लिए देयर आर 52 वीक्स, 52 कंप्लीट वीक्स एंड 1 एक्स्ट्रा डे. एक एक्स्ट्रा दिन होगा. देखो 365 डेज होते हैं, 365 में से 354 डेज 52 वीक्स हो गई और एक एक्स्ट्रा दिन है हमारे पास. उस एक दिन पे मंडे आ सकता है. अगर मंडे आया तो 53 मंडेज हो जाएंगे. ठीक है, तो चांसेस कम है इससे, तो क्योंकि इसके टाइम 2 एक्स्ट्रा दिन थे, इसके टाइम एक ही एक्स्ट्रा दिन है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज विल बी 1/7. समझ गए? आंसर कितना सिंपल था देखो, 1/7, 2/7, 1/7, यही आंसर आते रहता है. ओके, I hope this is done. I hope you have copied this. रफ वर्क में ये भी कॉपी कर सकते हो अगर एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए तो. ठीक है, नाउ डायरेक्टली जंप टू क्वेश्चन नंबर 16. जंप टू क्वेश्चन नंबर 16 बिकॉज वो सिमिलर क्वेश्चन है तो साथ साथ में वो भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 में they have said what is the probability that a leap year has 53 Sundays. 53 मंडेज की जगह पे उन्होंने कर दिया है संडेज और लीप ईयर बोला है. नॉन लीप ईयर का नहीं पूछा है, सिर्फ लीप ईयर का पूछा है, सिर्फ लीप ईयर का पूछा है. तो मैंने आपको कहा था कि मंडेज पूछे, ट्यूसडेज पूछे, संडेज पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो 53 संडेज आनी चाहिए लीप ईयर में. ओके, 52 संडेज तो आने ही वाले हैं बिकॉज 52 वीक्स तो होती ही है. ओके, 52 वीक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो लीप ईयर है तो 366 डेज है एंड 2 एक्स्ट्रा दिन है हमारे पास. ओके, तो इन दोनों दिन पे संडे आ सकता है, दोनों में से एक दिन पे संडे आ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है. तो there are 52 complete weeks and there are 2 extra days, so probability of 53 Sundays will be 2/7. Same. I hope this is next. Now the
Now the question number 11 is based on 2 dice. Okay, so these 2 dice sums we'll do it later. Okay, because this 2 dice sum doesn't come in exam. Okay, they never come in exam and they're very lengthy also. So it is not so important for now. Okay, we'll do them in the end. Okay, so let's continue from question number 13. Till 12 we had already done. 12th one was homework, so it is very easy. Let's start with 13. Question number 13. A bag contains 6 black balls and some green balls. Okay, 6 black balls and some green balls. Okay, some green balls. So let the number of green balls be X. Okay, so 6 black balls and some green balls. So total number of balls कितने हुए? Total number of balls will be 6 plus X. Okay, black balls 6 है and green balls X है. So total number of balls will be 6 plus X. ये हमारा total outcome होता है. This will be my total outcome. Then, if the probability of drawing a green ball is double that of a black ball, मतलब क्या बोला है? Probability of a green ball. Probability of a green ball is double. Double मतलब 2 times. It's double the probability of black ball. ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है? The probability of a green ball is double. Double मतलब twice probability of black ball. Okay, probability of green ball is double the probability of black ball. ठीक है. अब probability of green ball क्या होगी? Probability number of green balls upon total number of balls. Am I correct? ठीक है. Probability क्या होता है? Favorable outcomes upon total outcomes. यहाँ पे green ball की probability चाहिए, तो probability क्या होगी? Probability of green balls will be number of green upon total number of balls. ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए और अच्छे से. और probability of black balls क्या होगी? Number of black balls upon total balls. ठीक है, तो total number of green balls कितने हैं? X. So X upon total number of balls is 6 plus X. ठीक है. Total number of black balls कितने हैं? 6 upon total number of balls is 6 plus X. समझ गए? Now I can solve this easily. Okay. Solve this and tell me the answer. Correct, Agrija. Correct, Isha. Correct, Prithviraj. Yes, Heath. Correct. Yes. So all of you are getting same answers, but इसको हम और ज्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं. मुझे पता नहीं आप लोगों ने किया होगा या नहीं. Most of you might not have used that step. आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा यहाँ पे, isn't it? क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा. जरूरत ही नहीं थी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की. On both the sides, denominator is same. Denominator is same on both the sides. ठीक है, ध्यान देना है, presence of mind रखना है. Okay, both the sides correct रहे. Denominator same है तो कट हो जाएगा. क्या बचा? X is equal to 2 into 6, 12. हो गया.
Okay, what you have done is also right. I'm not saying that cross multiplication is wrong, but easy चीज हमें पता होनी चाहिए. Next, if the probability 14th sum, I'm talking about the 14th sum. If the probability of winning a game is 0.45, what is the probability of losing the game? Win की probability क्या है? 0.45. उन्होंने पूछा है lose की probability क्या है, हारने की probability क्या है. तो always remember the total probability is 1. Total probability is 1. तो जीतने की probability है 0.45, तो हारने की probability क्या होगी? 1 minus 0.45. That will be 0.55. You can understand it like this. Okay, 45% chance है आपके जीतने के, तो आपके हारने के चांस कितने हुए? आपके हारने के चांस है 55%. Okay. From here we learn one more thing which I will use it later. ठीक है, मैं सिर्फ बताऊंगा यहाँ पे, बट यूज बाद में करूंगा मैं. ठीक है, so you have to remember it. That जीतने की प्रोबेबिलिटी थी 0.45, तो इसका ऑपोजिट है, विन का ऑपोजिट क्या होता है? लूज. ओके, तो लूज की प्रोबेबिलिटी मैंने कैसे फाइंड की? 1 minus 0.45, तो मुझे आंसर आया 0.55. ओके, तो ये दोनों ऑपोजिट इवेंट्स हैं. ऑपोजिट इवेंट्स, विन लूज ऑपोजिट इवेंट्स है. ठीक है, ऑपोजिट इवेंट्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. क्या क्या स्पेशल है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में? दैट इनके प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? 1 टोटल वैल्यू. ओके, तो इसका फायदा क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ऑपोजिट इवेंट्स का? कि अगर आपको एक प्रोबेबिलिटी पता है तो दूसरा आपको डायरेक्ट मिल सकता है 1 से माइनस करके. ओके, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हाँ इजी है, बट ऐसा सम्स में बहुत यूज होता है. जैसे अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स बताओ क्या है, ठीक है, तो समझो आपको आंसर मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स इज 1/3. ओके, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ग्रीन बॉल. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ग्रीन बॉल मतलब इसका ऑपोजिट पूछा, तो आप क्या करोगे? नॉट अ ग्रीन बॉल तो दूसरे कलर के बॉल्स को ऐड करने का उनको सोचना है, डिवाइड करना जरूरत नहीं है. इसका ऑपोजिट पूछा है ना, तो सीधा 1 minus 1/3. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मतलब ऑपोजिट पूछा, इसका ऑपोजिट पूछा तो क्या करने का? इसके प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस करना. एज सिंपल एज दैट. समझ रहे हैं? अभी कोई सम में आया नहीं था अभी तक. आई गेस कोई पहले के सम में भी नहीं आया था, तो मैंने ये सिखाया भी नहीं था. तो ये जब आएगा ना सम में तो ये बहुत यूजफुल होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा ये, बिकॉज हमारा सम ही पूरा कट डाउन हो जाता है इससे. ठीक है, तो रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट दिस. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. नेक्स्ट 15th sum also we'll do it later. अच्छा, we had done this in the 6th sum. हाँ हाँ हाँ, हमने किया था इनसाइड आउटसाइड सर्कल में. ओके, नो प्रॉब्लम. अच्छा, 15th सम को भी लेटर 8, 15 ये 2 डाइस वाले सम्स है, तो इनको बाद में करेंगे. ठीक है, यस यस, वी डिड इन द 6th सम, नो प्रॉब्लम. 16th हमने ऑलरेडी कर दिया है. लेट्स डू द 17th वन. 17th वन इज वेरी इजी. ओरली आप लोग आंसर बता दोगे मुझे. जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. A box has total 200 pens, out of which 20 are defective. So total 200 pens है. Defective कितने हैं? 20. 20 defective है. ठीक है, तो not defective कितने होंगे? Not defective will be 180. Correct, not defective 180. Find the probability that it is not defective. हमें पूछा है कि find the probability that it is not defective. So probability of not defective
will be number of not defective upon total. बस इसको कैंसलेशन करो. This is the answer. Next, from a pack of playing cards, all odd numbered cards are removed. All odd numbered cards are removed. Odd numbered cards मतलब total पहले तो pack of cards में कितने cards होते हैं? 52 cards होते हैं. ठीक है, there are 52 cards. Odd numbered cards मतलब 3, 5, 7, 9. These are odd. Correct. 3, 5, 7, 9. अब ये 3, 5, 7, 9 सारे सेट्स में होंगे. स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स, हार्ट्स. ओके, सब में ये 3, 5, 7, 9 3, 5, 7, 9 होगा. ठीक है. नवीन, 1 कार्ड नहीं होता प्लेइंग कार्ड्स में. 1 नंबर नहीं होता. जो एस होता है ना, एस, उसको 1 कंसीडर नहीं करते. एस इज नीदर अ नंबर्ड कार्ड नॉर अ फेस कार्ड. ठीक है. 2 से लेके 10 नंबर कार्ड्स होते हैं. इसमें और के 3, 5, 7, 9 है. ठीक है. तो ऐसे 3, 5, 7, 9 चारों सेट में होंगे. ओके, सो 3 into 4, 12 cards are removed. 12 cards are, sorry, 3 into sorry 4 into 4, 16 cards are removed. 16 cards रिमूव हो जाएंगे ना चारों सेट्स में से. 3, 5, 7, 9 3, 5, 7, 9 3, 5, 7, 9 3, 5, 7, 9 मैंने निकाल दिया. तो 16 कार्ड्स निकल गए. तो अब कितने कार्ड्स बचे? कार्ड्स रिमेनिंग 52 minus 16, that is 36, I think. ओके, अब 36 कार्ड्स ही बचे हैं पैक में. ठीक है. अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. ओके, 36 कार्ड्स. तो कार्ड्स रिमेनिंग, टोटल कार्ड्स रिमेनिंग आर 36 कार्ड्स. अब क्वेश्चन पे आगे. ठीक है. सो कार्ड्स आर रिमूव्ड. व्हेन अ कार्ड इज removed from the remaining, मतलब when a card is drawn from the remaining. अभी 36 कार्ड्स के पैक में से मैंने एक रैंडमली कार्ड निकाला. ठीक है. Find the probability that it is a multiple of 3. Find the probability that it is a multiple of 3. ठीक है. FO मतलब favorable outcomes. ठीक है. Multiple of 3 होना चाहिए. Multiple of 3. Multiple of 3 क्या क्या होता है? Multiple of 3 क्या क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 3 3, 6 और 9 होता है. 3, 6, 9. 3, 6, 9 में से 3 और 9 तो मैंने रिमूव ही कर दिया था स्टार्टिंग में. वो तो है ही नहीं. 3, 6, 9 में से 3 और 9 तो मैंने रिमूव कर दिया था. तो बचा क्या? अभी सिर्फ कौन सा मल्टीपल ऑफ 3 बचा है कार्ड्स में? सिर्फ 6 बचा है. करेक्ट, सिर्फ 6 बचा है. और हर एक कलर का, हर एक सेट का 6 बचा है. 6 ऑफ clubs, 6 of spades, 6 of diamonds, 6 of hearts. Okay, so 6, I'll write here number 6 in each set. क्या बचा है? नंबर 6 बचा है सिर्फ. और 6 नंबर के 4 कार्ड्स होते हैं, वो चारों बचे. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी फॉर मल्टीपल ऑफ 6 विल बी 4/36. ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 36 है ना अभी. So 4/36. आंसर विल बी 1/9. Copied. Sorry, multiple of 3. Question multiple of 3 था. नेक्स्ट क्या पूछा है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड. तो फेस कार्ड तो मैंने रिमूव किए ही नहीं थे. I never removed any face card. Okay, second one, the probability of a face card. So there are how many face cards in the pack? There are 3 face card in each set. मतलब 3 3 3 3 12 face cards होते हैं. Okay, so 12 upon total number of cards अभी भी 36 ही है. ठीक है, जो रिमूव कर दिया उनको काउंट नहीं करना. 36 कार्ड्स है, तो 12 upon 36. Now you find this third one and tell me the answer. Correct, Krish. Correct, Ahmed. Correct, Achal. Correct, Agruja, Naveen. Manthan. Yes, correct. Everyone is getting the answer correct. So A's कितने होते हैं? 4 A's होते हैं. Simple. 4 upon 36. 1 upon 9. Upon 36 करना है. Upon 36. Raise your hand if you have any doubt. Otherwise, move to the next sum. Question number 19. Question number 19 says, identical cards are marked with numbers 1 to 50. Okay, 1 से लेके 50 तक numbers mark किया है cards के ऊपर. ठीक है, identical cards है. And well shuffled. Okay, ये playing cards नहीं है, 52 playing cards नहीं है. These are numbered cards. 1 to 50 numbers किया है cards को. ठीक है. One card is picked up from the set. Find the probability that the number on the card is the perfect square. Okay. सबसे पहले तो आपका sample set क्या होगा? 1 2 3 dot 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 50. 50 तक cards है. ठीक है. First one is they want it to be a perfect square. ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कौन से ये देखो, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है ना परफेक्ट स्क्वायर, आपको सोचना है कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसमें आपको जहां पे लिखोगे ना उसके मार्क्स होते हैं. ठीक है, अगर आपने नहीं लिखा फेवरेबल आउटकम्स तो यू विल लूज मार्क्स. ओके, सो अभी 1 to 50 के बीच में कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? विच इज द फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर? 1 to 50 में विच इज द फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर? Correct, Isha, Reet, Ishwari, mistake. Yes, correct, Achal. Naveen. The first perfect square will be 1. 1 is a perfect square. 1 का square 1 होता है. ठीक है, फिर आता है 2 का square, that is 4. फिर आता है 3 का square, that is 9. So 1 से start करना है, हमेशा याद रखो. अगर क्यूब भी पूछा, क्यूब भी पूछा तो भी 1 आएगा पहले, बिकॉज 1 का क्यूब 1 होता है. ठीक है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और 1 एक परफेक्ट क्यूब भी है, तो डोंट फॉरगेट टू ऐड 1 इन योर लिस्ट. सो 1 है, फिर 4 9 16 25 36 49. these many numbers are the perfect squares. So 1 2 3 4 5 6 7 perfect square मिला. So probability of a perfect square is 7 upon total कितने numbers है? 50. Okay. Second is a perfect cube.
तो क्यूब में भी मैंने बोला है 1 आना ही चाहिए, ठीक है। तो 1 क्यूब है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 64 नहीं चलेगा, 1 to 50 है, तो these 3 cubes will come. Okay, these 3 cubes will come. So your probability of perfect cube will be 3 upon 50. Prime number. So there is a question here that sir, if they ask squares but perfect squares नहीं बोला है, squares लिखे या perfect squares लिखे, आंसर remain the same. यही करना है. Third is a prime number. ठीक है, तो प्राइम नंबर के लिए भी पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। तो which is the first prime number? Which is the first prime number? Correct. No, Isha. Mistake. 1 is not a prime number. The first prime number is 2. 2 is the first prime number. 2. So 2 से start होगा. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, continue ahead, 31, 37, 41, 43, 47. So I am getting these many prime numbers. Can you see any other prime number apart from these? So how many numbers are these? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So what will be the answer? Probability of a prime number will be 15 upon 50. That is 3 upon 10. Correct answer. अब मैं यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ जो आपको काम आएगा. That is, now we have learned one thing कि 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 1 to 50 के बीच में, ये 1 to 50 वाला ही क्वेश्चन था, तो कितने प्राइम नंबर्स थे? 25. ठीक है, अब ये चीज याद ही रख लो. Remember this, keep this fixed in your mind that 1 to 50 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स, sorry 15, I'm sorry, 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है, ये दिमाग में फिट कर लो बात कि 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं. कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको याद होना चाहिए कि 15 प्राइम नंबर्स है. ठीक है, बिकॉज अगर आपने लिस्ट बनाने में कोई एक आध नंबर अगर भूल भी गए तो आपको इन दी एंड पता होना चाहिए कि हाँ 15 प्राइम नंबर्स है, मैं एक नंबर भूल गया हूँ यहाँ पे, या मैंने एक नंबर एक्स्ट्रा ले लिया है, बिकॉज ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा. ओके, देन 51 से लेके 100 के बीच में 10 और प्राइम नंबर्स आते हैं, 10 प्राइम नंबर्स आते हैं. ओके, ये भी याद रखो.
मैंने जो 25 लिखा था ना, वो मैंने इसलिए लिखा था बिकॉज टोटल 1 to 100 के बीच में अगर क्वेश्चन पूछा 1 to 100 के बीच में, तो टोटल 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। ओके ये डेटा आपको बहुत काम आएगा। जब 1 to 100 का पूछेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसमें मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर आपको पहले से पता होगा कि 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स, यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक, योर आंसर विल बी करेक्ट। ओके सैंपल सेट पे समझो एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा और वो इतना डीपली चेक भी नहीं करते सैंपल सेट को, एक एक नंबर चेक नहीं करेंगे कि आपने लिखा है कि नहीं, बट दे विल सी दैट द टोटल नंबर इज करेक्ट। ओके सो यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी वाइज, दैट यू शुड नो 1 to 50 के बीच में 15 होते हैं और 1 to 100 के बीच में 25 होते हैं। ओके इसकी जरूरत नहीं है, खाली 51 to 100 नहीं पूछेंगे अलग से, या तो 1 to 50 पूछेंगे या तो 1 to 100 पूछेंगे। तो 1 to 100 के बीच में यू शुड नो इट इज 25। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। फोर्थ वन, अ फैक्टर ऑफ 24, अ फैक्टर ऑफ 24। फैक्टर ऑफ 24 का मतलब क्या है कि ऐसे कौन से नंबर्स है which are divisible by 24, which divide 24। ओके कौन से नंबर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 तो सबसे ही डिविजिबल होता है। ठीक है 1 होगा, 2 से भी होगा 24, आई राइट इट हियर ओनली इन द फेवरेबल आउटकम्स। सो 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होता है 24 से, 8 3 are 24, 4 भी होता है 24 से, 6 4 are 24, 5 नहीं होगा, 6 भी होगा 24 से डिविजिबल, 7 नहीं होगा, 8 भी होगा, 8 3 are 24, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा 24 से डिविजिबल। ठीक है एंड 12 के बाद 24 खुद भी होगा 24 से डिविजिबल, 24 1s are 24, वो भी डिविजिबल है 24 से। So these are the numbers which are divisible by 24, मतलब these are the factors of 24। okay so 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 upon 50, that is 4 upon 25 will be your answer। 8:30 Bilal। Question number 20। A game of chance has a spinning arrow pivoted at the center of a dial as shown in the figure। कुछ नहीं, सिर्फ डायग्राम को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। When turned, the arrow points to any of the 12 numbers. What is the probability that the arrow points at? उन्होंने एक बड़ा सा व्हील बनाया है। ठीक है, उस व्हील को रैंडमली घुमाएंगे तो वो एरो किसी ना किसी नंबर पे पॉइंट करेगा। ठीक है, we have to see how many numbers are there. So there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 numbers है टोटल। ठीक है, so this is my total outcome। My total outcome is 12। 12 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। Okay, now what they want me to have is what is the probability that the arrow points at an odd number? An odd number, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये तो। So बताओ 1 to 12 के बीच में कौन से odd numbers है? Which are the odd numbers between 1 to 12? 1 3 5 7 9 11। Okay, so 1 2 3 4 5 6 odd numbers are there। So your probability for odd number will be 6 upon 12, that is 1 upon 2, 1 upon 2। Okay, then a prime number, favorable outcome लिखना है। A prime number between 1 to 12।
So कितने प्राइम नंबर्स है 1 to 12 के बीच में? वहां पे लिस्ट भी है हमारे पास प्राइम नंबर्स की. So 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11. So 5 prime numbers है. So 5 upon 12. I hope you are getting it. Third one. A number more than 5. 5 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. More than 5 बोला है, मतलब 6, 7 से लेके 12 तक. 7 नंबर्स होते हैं 6 से लेके 12 तक. 6 से लेके 12 तक 7 नंबर्स होते हैं. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So more than 5 is 7 upon 12. Okay. Fourth one, I want you to do it on your own. अभी किया था हमने परफेक्ट स्क्वायर. 1 to 12 के बीच में कौन से परफेक्ट स्क्वायर है? One is a perfect square, 4 is a perfect square, and 9 is a perfect square. So 3 upon 12, that is 1 upon 4. Correct. Correct, Ahmed Manthan, correct. Correct, Krishna. Question number 21. A dice is thrown 500 times and the frequency of the outcomes are noted as given below. तो क्या दिया है उन्होंने कि आउटकम क्या आया है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है. मींस डाइस को रोल किया, ठीक है. एक डाइस को बार बार रोल कर रहे हैं, ठीक है. और काउंट कर रहे हैं कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया और 6 कितनी बार आया. तो 500 टाइम्स डाइस को रोल किया, ओके, और काउंट किया. बहुत ही फ्री टाइम है इनके पास. सो 75, 85, 100, 86, 90 एंड 64 के मतलब जो नंबर 1 है वो 75 टाइम्स आया, जो नंबर 2 है वो 85 टाइम्स आया, जो नंबर 3 है वो 100 टाइम्स आया. समझ रहे हो ना मतलब क्वेश्चन का. ठीक है बहुत ही सिंपल, तो थोड़ा सा अलग है. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन. Find the probability of getting a number less than 3. Probability of a number less than 3. Less than 3 मतलब 1 और 2 चलेगा, ठीक है. सी टोटल कितना है, टोटल आउटकम क्या है, टोटल 500 टाइम्स डाइस को रोल किया था, 500 टाइम्स. तो आपका टोटल आउटकम है 500. टोटल 500 आउटकम्स है आपके पास, ठीक है. उस 500 में से दे आर सेइंग लेस देन 3. सो लेस देन 3 मतलब 1 चलेगा या 2 चलेगा, ठीक है.
तो 1 का कितना फ्रीक्वेंसी है 75, 2 का कितना फ्रीक्वेंसी है 85. ओके, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या होगा 75 प्लस 85 दैट इज 160. 1 के आउटकम्स और 2 के आउटकम्स फ्रीक्वेंसी. सो 160 अपॉन 500. समझ में आ रहा है ना. उन्होंने बोला है लेस देन 3 मतलब 1 और 2 आ सकता है. तो 1 आया 75 टाइम्स, 2 आया 85 टाइम्स, तो टोटल 160 टाइम्स. लेस देन 3 नंबर आया, so 160 upon 500. reduce it 8 upon 25. a prime number, they are saying a prime number. so अभी 1 to 6 में कौन से prime number है 2 prime number है, 3 prime number है, 5 prime number है. 2 3 5 are prime numbers. so what is their frequencies 85 plus 100 plus 90. okay, what is 85 plus 100 plus 90? Yes, do the calculation. Tell me the answer. Tell me the final answer. $175 upon 500. So 25. Sorry, 275. I'm sorry. 275. So 25 से cancel किया, 25 ones are 25 ones are. So I'm getting the answer is 11 upon 20. Okay. Easy question था ये, कुछ था नहीं ज़्यादा इसमें. A bag contains 4 green, 12 red, and X yellow balls. So green, red, and yellow. कितने green balls are 4, red balls are 12, and yellow balls are X. Okay. Now the question is, express in terms of X the probability of getting a yellow ball. Express in terms of X the probability of getting a yellow ball. So सबसे पहले तो 4, 12 और X. तो total number of balls कितने हुए? Total number of balls will be 4 plus 12, 16, 16 plus X. So ये हुआ total number of balls. Okay. Then they're asking me express in terms of X the probability of getting a yellow ball. तो yellow ball की probability क्या होगी? Probability of a yellow ball. Probability of yellow ball मतलब कितने yellow balls है upon total number of balls. Simple concept है ना. Number of yellow balls, कितने yellow balls है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Number of yellow upon total. Yellow कितने है? X और total क्या है? 16 plus X. तो ये हो गया probability of yellow. When a ball is drawn, the probability of getting a yellow ball is double that of green ball.
क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल इज डबल, मतलब ट्वाइस दैट ऑफ ग्रीन बॉल। मतलब येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है इट इज 2 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। समझ रहे हैं मैंने क्या लिखा है? सिस्टम पहले भी हमने किया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इज 2 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल मेरे पास ऑलरेडी है x अपॉन 16 प्लस x। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स, number of green balls upon total number of balls, so that is 4 upon 16 plus x. Now how to do the sum? Don't forget, you can cancel, दोनों साइड में सॉल्व करना है अभी है, तो 16 plus x cancel हो गया, so x is 2 into 4, that is 8. so x क्या था? x येलो बॉल्स था, तो हमें मिल गया फर्स्ट पार्ट x is 8, so therefore write here the number of yellow balls is 8. Number of yellow balls is 8. Second, they are asking, find the probability of getting a red ball. Probability of getting a red ball. तो red ball की probability क्या होगी? Number of red balls upon total number of balls. Correct? Probability of red balls will be 12 upon 16 plus x. Okay, but now you know the value of x. x 8 है, पता है value x की 8 है, तो यहाँ पे value put कर देते हैं। आंसर क्या आया? 1 upon 2. Probability of red balls is 1 upon 2. Next, question number 23. Question number 23. 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed. Okay. If 3 coins are tossed, okay, how do you write the total outcomes, the sample set? कैसे लिखते हैं? See this. For 3 coins are tossed. मैं आपको एक तरीका बताता हूँ लिखने का। 3 coins toss मतलब समझ सकते हो ना, कि तीनों पे समझो heads आया तो heads heads heads, तीनों पे अगर tails आया तो tails tails tails, एक पे heads आया तो heads tails heads, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 coins अगर टॉस किए हैं तो कितने टोटल आउटकम्स आ सकते हैं? टोटल आउटकम्स आते हैं 8 टोटल आउटकम्स कैन कम। हम उनको लिखना कैसे है 8 टोटल आउटकम्स को? हाउ विल यू कवर ऑल आउटकम्स? सी दिस। पहले लिखो H H H, तीनों पे हेड्स, फर्स्ट आउटकम इज दैट, ठीक है। फिर क्या करना है? फिर 2 बार H लिखो, फिर 1 बार H लिखो, ओके। फिर टेल्स टेल्स टेल्स, फिर 2 बार टेल्स, फिर 1 बार टेल। समझ रहे हैं? और बाकी रिमेनिंग में क्या होगा? यहाँ पे टेल्स टेल्स से इसको फिल कर दो और टेल्स वाले को हेड्स से फिल कर दो। ये कितने आउटकम्स हो गए?
These are 6 आउटकम्स. दो और बाकी है. दो और कौन से आउटकम्स बाकी है? एक आउटकम में दोनों साइड हेड्स होगा, बीच में टेल्स, और दूसरे आउटकम में दोनों साइड टेल्स होगा, बीच में हेड्स. समझ में आया? याद कैसे रखना है? I'll tell you once again. H H H H H H. पहले 3 H लिखो, फिर 2, फिर 1. फिर 3 टेल्स लिखो, फिर 2, फिर 1. एंड देन दोनों साइड H, बीच में टेल्स, दोनों साइड टेल्स, बीच में H. I hope you have understood. These are your 8 outcomes. These are your 8 outcomes. Okay. Now let's see what are the questions based on these outcomes. Find the probability, first one, that you are getting 3 tails. Find the probability of 3 tails. So 3 tails. Favorable outcomes. Okay, 3 tails है. 3 tails कहाँ दिख रहे हैं? ये एक ही आउटकम है ऐसा जिसमें 3 tails है. There is only one outcome where you have 3 tails. Okay, so your answer will be this one outcome only. That means 1 upon what are the total number of outcomes? Total number of outcomes are 8. Correct? समझ गए ना? Then probability of, if you have any doubts you can raise your hand, okay, but I don't think so. This is like a doubt, but काफी easy चीज ही है ये. Exactly 2 tails. Next one is exactly 2 tails. अब exactly 2 ही tails होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए. ठीक है, 2 tails वाले कौन से दिख रहे हैं मुझे ऑप्शन? ये एक हो गया, इसमें 2 tails है. ठीक है, इसमें तो 3 tails है, ये नहीं चलेगा. फिफ्थ वाला चलेगा. अगेन देयर आर 2 tails. ठीक है, और लास्ट वाला देयर आर 2 tails हियर आल्सो. ये भूल गए होंगे आप लोग. ये लास्ट वाले में भी 2 tails है ना, 2 ही tails है, बीच में एक हेड है. तो ये 3 आउटकम्स है ऐसे. तो फेवरेबल आउटकम लिखना है पहले. डोंट फॉरगेट फेवरेबल आउटकम्स में आएगा H T T T T H and T H T. Favorable outcomes, and then your answer will be 3 upon 8. Then probability of at least 2 tails. इसमें क्या है? Favorable outcome, probability of at least 2 tails. Okay, मतलब at least 2 tails का मतलब क्या है? 2 tails तो होने ही चाहिए, पर उससे ज्यादा भी चलेंगे. उससे ज्यादा भी चलेंगे मतलब 3 tails भी चलेगा. समझ रही है बात? 2 tails तो चलेंगे ही, at least 2. तो 2 भी चलेगा या 2 से ज्यादा भी चलेगा. ठीक है, तो 2 tails तो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, 2 tails. अब 2 से ज्यादा टेल्स कहाँ पे हो सकता है? मतलब 3 tails. तो ये भी वाला भी काउंट हो जाएगा. अभी बात समझ में आ रही है? दिस वन आल्सो बी काउंटेड नाउ, 3 tails वाला. सो राइट द आउटकम्स H T T T T H T H T and T T T. So 4 outcomes हो गए. So 4 upon 8 which will come down to 1 upon 2.
Fourth one is at most one tail. अब इसका क्या मतलब है? At most one tail. At most. At most means maximum. At most का मतलब क्या होता है? Maximum. So at most one tail बोला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए, ठीक है? एक टेल चलेगा, एक से कम भी चलेगा, मतलब 0 टेल्स हो गए तो भी चलेगा। मैक्सिमम 1 का मतलब क्या होता है कि 0 भी इंक्लूड होता है उसमें, ओके? कि अगर टेल्स नहीं होगा तो भी चलेगा और मैक्सिमम 1 चलेगा, 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो एक टेल भी चलेगा और 0 टेल्स भी चलेंगे। तो यहाँ पे अभी कहाँ दिख रहा है मुझे? तो ये फर्स्ट वाला, इस फर्स्ट वाले में एक भी टेल्स नहीं है तो ये चलेगा, बिकॉज उन्होंने बोला मैक्सिमम 1 टेल, मिनिमम कुछ भी चलेगा। सो फर्स्ट हो गया, ये भी काउंट। सेकंड वाले में भी एक टेल है तो ये भी आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 2 है, नहीं चलेगा। यहाँ पे 3 है, नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 है, नहीं चलेगा। ये वाला एक ही टेल है यहाँ पे भी, ठीक है? और सेकंड लास्ट इसमें भी एक ही टेल है तो ये भी चलेगा। तो 4 आउटकम्स हुए। फेवरेबल आउटकम्स H H H H H T T H H and H T H, ठीक है? So answer will be 4/8, that is 1/2. Probability of at most one tail. I hope you have understood, students. There are total 36 sums in the chapter. So in the next lecture, we'll definitely complete the exercise. Okay. The miscellaneous and boards, you can do it for homework because they are quite similar. So that's it for today. We'll end the lecture here. I hope you've understood. If any doubts, you can raise your hand. Yes, Agraja, you also had some doubt in linear equation. Sachi, you also had some doubt. So anyone else, if you have any doubt, you can ask me. Else we can wind up. Yes, Agraja. Hello, sir. Hmm. So 14 some board question. Okay. So it should be 13 or it should be 3x only. 2014 वाला. So 2019 14 question, board question, page number 36. नहीं मेरे पास है ना ओल्ड टेक्स्ट बुक है, सो जस्ट मतलब मेरे यहाँ पे 14th क्वेश्चन इज 2014 का क्वेश्चन है. सर इधर 2019 का है. 19 का है तो फिर आप मुझे क्वेश्चन बताओ क्या है. सर मैंने आपको भेज भी दिया. ओके ओके, आई विल टेल. 11x 11x minus 4 is greater than 15, greater than 15. Sorry, so less than 15. 15x plus 4 less than 15x plus 4
and less than equal to 3x plus 14, and it belongs to whole numbers. So this is the sum. पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ. Yes sir. 15x को यहाँ पे लाता हूँ, प्लस 4 वहां पे जाएगा, so minus 4x is less than 8, so 8 ये उल्टा हो जाएगा, so x is greater than -2. ठीक है. अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, so 3x यहाँ पे आ जाएगा, 15x minus 3x, 4 वहां पे जाएगा, 14 minus 4, so 12x is less than equal to 10, x is less than equal to 10 upon 12, 5 upon 6, so ये कितना आ रहा है, 0 point ये तो फिर आंसर ही नहीं आएगा इसमें से. और मैं वही मतलब मैं उधर ही अटक गई, और फिर इसके लिए मेरे को लगा इसमें 0.9 आएगा, तो x is less than equal to 0.9 and x is greater than -2. तो होल नंबर्स बोला है, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, तो 0 आएगा आंसर बस. नो सर, बट पीछे आंसर इन लोग ने सोल्यूशन सेट दिया है 0 1 2 3 4 5, वो सोल्यूशन सेट है पीछे. सर मेरे को लग रहा है कि वो 13 होना चाहिए. आई डोंट नो, शायद 13 हो जाए तो सही हो जाए. यस सर. 13 से सही आ रहा है आंसर. हाँ सर, 13 से राइट आ रहा है, मतलब वही मेरे को पूछने का था कि गलत है कि क्या है. तो हो सकता है, गलत हो सकता है, बिकॉज नया सम है ना, अभी डाला ये सम, 19 का सम पहले बुक में नहीं था. ओके सर. नहीं, मेरे को लग रहा है क्योंकि 13 से अगर 15 माइनस 13 करते तो 2 आता है, फिर वो साइड पे 10 आता है, सो फिर उनको डिवाइड करते तो 5 आंसर आता है, तो मे बी. होगा. यस सर. ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, इट्स ओके, छोड़ दो उसको. Sir, I have doubt in exercise for Roman number 4, third question. 3x plus 14 upon 3, that one. Don't unmute, just stay unmute for a while. Yes, sir. यही क्वेश्चन है ना, 3x plus 14 upon 3. Yes, sir. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, आंसर रॉन्ग आ रहा है. हाँ sir. क्या आंसर आया आपको? Sir, like solve भी नहीं हो रहा. सॉल्व ही नहीं हो रहा. सो मैं 4x upon 3 को यहाँ लाता हूँ, 14 upon 3 को वहां भेजता हूँ, करेक्ट. So 3 3s are 9x minus 4x upon 3 is greater than, this 3 will multiply, minus 6 minus 14 upon 3. Okay, now to make it easy you can Yes. cancel the 3. So 5x is greater than minus 20. So x is greater than minus 20 upon 5. So x is greater than minus 4. अब इसको सॉल्व करेंगे. So 4x upon 3, ये 2x को यहाँ लाते हैं, minus 2 is greater than minus 2 आ जाएगा, so minus 4 plus 2. So 4x LCM लेंगे तो 4x is 6x upon 3 greater than equal to minus 2. So minus 2x greater than equal to 3 वहाँ जाएगा, minus 6. साइन रिवर्स हो जाएगी, so x is less than equal to 3. So x का रेंज क्या मिला, less than equal to 3 and greater than minus 4. Okay. Okay, sir. Sir, and miscellaneous का third वाला. You can take the screenshot here. Yes, sir. Miscellaneous का थर्ड वाला.
कुछ आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, काफी सिंपल समय है। Okay, क्या sir, I'll mistake try किया? again. हाँ, जस्ट एक बार ट्राई करो वापस। ओके, फिर भी नहीं आ रहा है ना, तो सेंड मी योर वर्किंग। Okay, sir. Done, sir. ओके, यस हीट। तो मेरे को भी वो थर्ड वाला नहीं आया मिसेस का। मिसलेनियस का थर्ड ही नहीं आया था, तो कुछ क्वेश्चन में इसमें भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रुको मैं देख ही लेता हूँ फिर। मिसलेनियस का थर्ड नहीं आया। मैंने 2 बार सॉल्व किया, सही जा रहा है। देख ही लेता हूँ फिर, शायद कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकता है। क्या दिया है पीछे आंसर इसका? और सर एक था तो 1 2 3। 1 2 3, ठीक है। हाँ इसका HCL लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4x अपॉन 6। 6 यहाँ पे आएगा तो माइनस 12 इज लेस देन 3 माइनस 4x। 4x को यहाँ लाते हैं, 12 को वहाँ भेजते हैं। So 4x is less than equal to 15, so x is less than equal to 15 upon 4. ये कितना होता है? 3.75। 3 3 अपॉन देन अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेम स्टेप इधर भी आएगा। आफ्टर एलसीएम लेस देन इक्वल टू 6 6 प्लस 5 11 अपॉन 6 होगा। 6 6 कैंसिल, 8, so -4 नीचे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी। So x is greater than equal to -2. ओके, आ रहा है आंसर। x बीच में आएगा, x is less than 3.75 and x is greater than equal to -2. तो क्या बोला है? होल नंबर, सर मैंने लिया नेचुरल 1 2 और 3 करेक्ट है। आ रहा है आंसर। तो फिर मिसेस सिलेनियस का 10। मिससेलेनियस, मिससेलेनियस, हाँ सर। ये भी इजी है। मिससेलेनियस ये भी इजी है, ट्राई करो, ये आएगा आपको। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा, बहुत ही इसमें सिंपल है। तो मेरे को लगता है मैंने माइनस का रॉन्ग किया तो एक बार वापस ट्राई करो। और सर बोर्ड क्वेश्चन 14 वो हो गया। ठीक है, बोर्ड क्वेश्चन 14 में डाल। ओके, चलो गुड बाय।